राजा रघुवंशी हत्याकांड में जांच में बड़ा मोड़ आया है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने आज इस सनसनीखेज मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। इसके बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत अन्य आरोपियों को चेरापूंजी के वेई सावडोंग फॉल्स इलाके से हिरासत में ले लिया गया। यह वही स्थान है जहां राजा की हत्या की गई थी। And we just had to actually replay or recast how they had done it. And we started off from the Maulakiat parking lot where they had kept the scooties. Then we had moved on to a place about 3 to 4 kilometers from Waisadong parking lot, whereby they had stopped to take photographs, and there was an attempt in that place, but it was not feasible because Raja started off his bike, and so they had to move on. And they had stopped about 200 meters away from the Waisadong parking lot. There only photographs were taken, but attempt was not made in that point. We finally came to the Waisadong parking lot where the scooties were kept. We ascertained where the scooties were kept and the position of the scooties vis-a-vis the parking lot, and where they had actually made an ingress into the viewpoint. After that, we had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken, as to replay the whole thing, we had taken one of our personnel from the Fire and Emergency Services as Raja to replay the role of Raja. We have ascertained what was the position just before the murder, who was standing where, and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal, alias Vicky. The second blow was by Anand, and the last blow was by Akash. In our interrogation, we have ascertained that there is one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. They have replayed of how they have thrown the 2 daos. The first dao which was thrown has been recovered, and you have seen that, I think, in certain visuals. It has an orange handle. The second machete which is not recovered, and from which they have shown as to where is the point of it being thrown, it's got a steel handle. The SDRF are on the job. They've gone down, and they've taken handheld metal detectors to try to recover the weapon. We have also ascertained Akash, the white shirt we had recovered with the body on the 2nd of June. That was thrown by Akash. That was his shirt. He has shown us from where he has thrown that. We have also ascertained as to what happened to the mobile of Raja, which was first damaged by Sonam, and later by Vishal. So this whole thing has been played out, and how they made their exit from this place. So this whole scheme, this whole reconstruction of the murder, the offence has been played out today. We have got a very clear picture. We have recorded in videography. We have got independent witnesses to cover it, and I think the reconstruction was very, very successful. Thank you. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 30 हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजधानी में कुल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली वासियों के लिए एक नया युग है, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। एक नया युग, एक नया समय, एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले, और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए
और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए, परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को करना शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रोक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीज़ें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है। तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। दिल्ली में आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा कर के इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं, जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफ़े जा कर के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इनबिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। आज दिल्ली को हम उस ओर लेके जा रहे हैं जहां इलाज के कारण से कम किसी को जीवन ना गंवाना पड़े। शादरा साइबर पुलिस ने डेटिंग ऐप के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के शादरा जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी डेटिंग प्रोफाइल बनाकर लोगों को जाल में फंसाता था और फिर वीडियो कॉल के जरिए उनकी आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करता था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लोगों की भावनाओं और कमजोरियों का फायदा उठाकर मोटी रकम ऐंठ रहा था। एडिशनल डीसीपी दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ये गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। आरोपी लोगों की निजी भावनाओं और बातचीत को रिकॉर्ड कर उन्हें शर्मिंदा करने और ब्लैकमेल करने की रणनीति अपनाते थे। उन्होंने कहा कि आरोपी श्याम सिंह अलग अलग लोगों से पैसे देकर उनके नाम पर बैंक खाते और सिम कार्ड मंगवाता था और फिर उनका इस्तेमाल साइबर अपराध में करता था। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।